Hello, good evening and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं इस Sports Pakistan's first ever HD Sports channel and 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And the news out of Dhamshala is that India has won their contest against New Zealand very convincingly. We are going to talk about that. With me in the Pavilion, I'm joined by four former Pakistani captains, four legends, four outstanding cricketing minds who've been analyzing games with us throughout this World Cup journey. First up, I've got one of the finest fielders, a really good runner between the wickets, a finisher of games, a captain of Pakistan, and one of the super fittest people that we know, Shoaib Malik. Shoaib, good evening and welcome. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. Also, next up is Mr. Dependable. When the Pakistani batting order was in disorder, he would always bring some kind of order, holding one end. The most successful test captain in Pakistan's test cricket history. I've got my gym partner and my food partner, Misbah. Misbah, good evening and welcome. Thank you, Janab. Eight crooked fingers and two straight thumbs. The silver fox that always outfoxed players around the world, keeping behind the wickets when the two Ws operated, and proudly captained Pakistan, also referred to as a man of crisis, Mr. Moin Khan. Good evening and welcome, Moin. Good evening. Assalamu alaikum, everyone. And finally, cricket royalty, the Sultan of Swing and the unquestionable all-rounders of all all-rounders. Yeah, the king himself, ladies and gentlemen. I have got the very naughty and mischievous Wasim Akram. Good evening and welcome, Wasim. Good evening, good evening. Assalamu alaikum, everyone. सब तो पहले तो है दासना जिम केड़ा वही वाला my gym partner. और मेरा gym partner है. Yeah, right. पूछ लो. He was on the treadmill next to me Today. What time? What time? 4:30 to ये तो 6 बजे चले गए थे मेरे ख्याल में 6:30. यार छोटे झूठ मारो. नहीं actually जिम तो बंद हो गया है. और तू सोटले विच कोई पुट्ठी सीधी दे. All right, thank you sir. मैं रुक गया था आधा घंटा ना मशीनों को चुप कराने में लगा रहा, रो रही थी. तो लगा तेरे साथ भाग रहा था, तुझे नजर नहीं था रहा, सिर्फ शू शू की आवाजें आ रही थी. नहीं शू नहीं वो बच्चों का आ गया ना सोनिक का है ना नया, बच्चों को बड़ा तेज भाग. इसीलिए तो इसका नाम रख दिया मैंने, Speedy Gonzalez. Oh my goodness me! I have been named the Speedy Gonzalez by the legend himself. Thank you, Wasim. Really appreciate it. Right, folks, the news out of Dharamsala is that India has won their game. These were the table toppers. Let's take a look at the match summary up on your screen. India ने आज टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और क्या बेहतरीन आगाज दिया इंडिया के बॉलरों ने towards this New Zealand they had no answers right at the beginning, and 273, but Mitchell, man, what a century by this man over here. 130 over 127 balls. Ravindra also contributing very responsibly, had to really craft that innings. That was a good partnership, and in the end it was 273, but in 50 overs. Look at the bowling figures for that Indian bowling unit. Shami there picking up those 5 wickets, incredible bowling by him, and then of course Kuldeep there and Bumrah. Mind you, Kuldeep was taken for runs today, and we'll talk about that in a moment, but in reply it was the king himself, King Kohli, putting up that 95. He tried to get that century in right at the end, but unfortunately it was not meant to be today. But it would have been an icing on the cake had he gotten that century. It would have been just wonderful to have that. But then Rohit Sharma, captain, leading from the front with that charge earlier on, and Jadeja, so as everybody contributing. Ferguson there picking up 2 wickets. Santner 1 for 37 in his 10 overs, and Henry 1 for 55. India won that by 4 wickets. So congratulations to Indian fans around the world. It is a truly deserved victory, and they look completely unstoppable. With that, time to take a look at the points table brought to you by Pepsi. Well, let me start with you, Wasim. Yes. पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती. मतलब we've been just every time they go out to play, they just outshine everybody, they outclass their opponents, and they look unstoppable now. It's look like they look like a champion team. ये वर्ड लिखा हुआ है मैंने, unstoppable, like a champion team. Runaway train नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं. They are going that way. अब देखो आज उन्होंने एक चेंज भी की according to the situation. स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का या न्यूजीलैंड का है, बिकॉज कोई आपका इंजर होता है या आउट ऑफ टच होता है या आपने अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन या पिच कोई और एक लड़का खिलाना होता है. आज उन्होंने शामी को खिलाया एंड पांड्या गॉट इंजर्ड, देन उन्होंने शर्दिल को ड्रॉप किया
स्काई को डाला, नया बैटर डाला, उसके बावजूद शमी ने आते ही पहली गेंद आपने स्पेल की, फर्स्ट बॉल पे गॉट अ विकेट इनसाइड एज. बट यू नो इंडियन टीम हैव द वेपन, दे हैव द मेरिट, they have the skill, and most importantly they have the क्या उसे कहते हैं, execution, how to अपने plans को हमने आगे करना कैसे है, क्या ज़बरदस्त चेस किया है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, they looked smooth, they looked calm, they looked in control, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. Absolutely. And then Misbah, Virat literally toying with the bowlers in the end because he wanted that century. The unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं. जैसी मर्जी सिचुएशन. तरीका भी कुछ ऐसा होगा. वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होकर उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगे वहां में करनी पड़ेंगी, ऊपर जंप लगा के. इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा. अब somebody, वो आज जब क्लाउड आया है, the fog आई है /fog/cloud, so somebody sent me a picture and wrote back, अमावस की रात ये होती है. I suppose so, yeah. I suppose so. It's kind of full moon or half moon kind of night. I was reading about it actually. Well, for right now for India, it's just sunny skies through and through all the way. फखर, जो होम एडवांटेज की हम बात करते हैं, ये होता है होम एडवांटेज कि you know your conditions, like आपको पता है क्या करना है, कौन से बॉलर हैं, किस फेज़ में क्या होगा, हम कैसे खेलेंगे, उसके बाद एक एक चीज़, और फिर कंट्रोल है. जिस किस्म की इंडिया ने बॉलिंग की आज, पहले 10 ओवर और आखिरी 10 सिर्फ ओवर आप देख लें, बाकी तो बीच में छोड़ दें. मतलब ऐसी बॉलिंग. 2 आउट थे 40वें ओवर तक न्यूजीलैंड के, 2 सेट बैटर थे, लेकिन उन्होंने हिलने नहीं दिया. आखिरी 10 ओवरों में मिचेल आखिरी ओवर में जाके आउट हुए. 100 के बाद एक बंदा खेल रहा हो, और ऐसा प्लेयर खेल रहा हो जो कि इन फॉर्म है और बड़ा डेंजरस प्लेयर है. लेकिन जिस किस्म की बुमराह ने, शामी ने, इवन सिराज ने आके बॉलिंग की है, दे वर हेल्पलेस. आखिरी 10 ओवरों में अगर आप देखें, ओनली 54 रन्स, 6 विकेट्स. That's nothing. Yeah, it's just तो वहीं incredible. बैटर्स हैं ना, जो उनके बैटर्स हैं इंडियन टीम के, नो डाउट दे आर इन ग्रेट फॉर्म, स्पेशली विराट, रोहित. और लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो बॉलिंग अटैक है वो अलाउ करता है टॉस जीत के आप दूसरी टीम को खिलाएं, बैटिंग कराएं, क्योंकि वो क्रेडिट बॉलिंग को जाता है. वो उस रन्स तक नहीं जाने देते दूसरी टीम को कि जहां पे मैच पड़ सके. आज भी ये एट वन स्टेज, एज मिसबा भाई सेड, कि इन द लास्ट 10 ओवर्स जिसमें मेरा ख्याल है 54 रन्स हुए हैं, वो एक ऐसी चीज़ थी कि ये आज का जो कंडीशंस थी, अगर ये वो रन्स बनाते 320 330 इस तरह, तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था चेस करना, क्योंकि आज की कंडीशंस रिलेटिवली थोड़ी सी टफर साइड पे थी एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज. तो ये आई गेस क्रेडिट शुड बी गिवन टू Indian bowlers. Yep, credit should be given to Indian bowlers. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, I have to ask you something, Moin. Don't go away. Don't go away. मैं कह रहा हूँ. Right, welcome back to the Pavilion. You're watching Sports and Sports in the Airwise app. And in the Pavilion, we're talking about the India-New Zealand game. India winning that one and picking up 2 more points and going right on top of the table with 10 points. Moin, let me bring this conversation to you. Let's talk about the New Zealand batters. New Zealand के जो बल्लेबाज थे, शुरू में वो बड़े uncomfortable नजर आए, और वो पिच जो थी मुश्किल लगना, पता नहीं क्यों लग रही थी कि जैसे बड़ी मुश्किल है. Was it the pitch or was it just spectacular bowling by the Indian bowlers? बॉलिंग भी अच्छी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो प्लान लेके आए कि विकेट सेव करनी है हमने, एट द एंड हम जाके रन्स बना लेंगे, और मिडल ऑफ द इनिंग्स में हमने देखा कि 22-40 ओवर्स तक हम जाते हैं. बहुत ही अच्छा एवरेज मेंटेन किया है. 185 रन्स बनाए उन्होंने एट द एवरेज ऑफ 6.1. मैं समझता हूँ कि ये ओडीआई क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल है जो आपकी प्लानिंग होती है उसकी बेहतरीन एग्जीक्यूशन होती है, और वो हुई. बट जो प्लान था आखिरी 10 ओवर्स का, आई थिंक वो सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके. नो डाउट बॉलिंग वाज वेरी गुड, स्पेशली वी मस्ट प्रेज शामीज़ बॉलिंग, जिन्होंने ये विकेटें लिए आके, और आखिरी ओवर्स में जैसे भी मिसबा ने बात की है, 5.4 के एवरेज से सिर्फ उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 54 रन बनाए और 6 विकेटें गिरी उनकी. आई थिंक तो यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है जिस तरह इंडिया ने बॉलिंग की आखिरी 10 ओवर्स में. मिडल में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके जो एक्सपेक्टेशंस थी. कुलदीप यादव को भी हमने देखा
कि फर्स्ट 5 ओवर्स के अंदर उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई आज, उन्होंने 50 रन्स एंड अबव दिए हुए। तो मोइन उन्होंने दिखाया आई सपोज टुडे भाई जो उन्होंने बताई है ना बात वो आप दोनों वहाँ से ना स्टैट्स में ढूंढ रहे थे, वो नहीं, उन्होंने तो हिसाब लाया है तो कैलकुलेटर यार अपना काम तो कर, स्टैट्स में नहीं है, दोनों नहीं देखे वो जितने उसके पेपर हैं। मेरा दिल जब ये बात कर रहा था, पता है मेरा दिल क्या कह रहा था कहने को, बाइनरी ज़मीन का इंतकाल कर दिया ट्रांसफर करवा दे मेरा। ओके बट वेल डन थैंक यू वी रियली अप्रिशिएट दैट। आप अपने कैलकुलेटर के साथ खुद एवरेजेस वगैरह सारी कैलकुलेट कर रहे हैं। आखिरी 13 ओवरों में सिर्फ 4 बाउंड्रीज दी हैं आज इंडियन बॉलर्स ने। डेथ बॉलिंग वाज जस्ट फैंटास्टिक बाय देम वसीम। यू सी मैं वाज नोटिसिंग स्पेशली बुमराह और सिराज का जो अर्ली स्पेल है, जो मोइन अभी बता रहे थे कि एक तो उनकी 2 विकेटें गिर गई 19 रन पे न्यूजीलैंड की, दे बोल्ड वेल। एंड सिराज अपना जो 5वां ओवर कर रहा था स्पेल का, उसकी पेस आ रही थी 142 किलोमीटर्स एन आवर। So they were bending their back, they're getting their confidence game by game, rhythm is back, getting wickets with the new ball. And बुमराह की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे ख्याल में वो वाइट बॉल में, रेड बॉल में तो है ही है, ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड स्पेशली इन फर्स्ट 10 ओवर्स, दो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर्स, बिकॉज वहाँ पे 2 फील्डर अलाउ होते हैं आपके। देखिए ना इस पिच पे भी शुरू में अच्छी पिच खेली है, स्विंग कर रहा है बॉल, सक्सेस है, और विकेटों में एवरी चीज़ अंदर भी बाहर भी, विकेटों से बाहर निकल रही है, विकेटों से अंदर आ रही है, and with brisk pace. And that's why this guy is so lethal, and that's how you create pressure. लेंथ आप देखें, कंसिस्टेंट लेंथ है, वो जो टीजिंग लेंथ है, वहाँ से बाहर निकल रहा है, वहीं से अंदर आ रहा है। ये नहीं कि कोई गेंद थोड़ा सा फुलर हो गया, ड्राइव का मौका मिल गया, नहीं, वो खिंची हुई लेंथ वहीं पे बॉल हुए हैं। पिच मैप भी उस टाइम दिखा रहे थे, तो ही इज सो एक्यूरेट। और आखिर के ओवर्स में प्लान्स आर सो। सिराज को भी देख लें आप, ये रन टुगेदर स्विंगिंग, इसका आउट स्विंग देखो अच्छा था, हो रहा था। वही लाइन जो लेंथ की तो बात कर रहा है, वो जो हम बात करते हैं, इवन 6 to 8 मीटर से थोड़ा अर्ली ऑन इन्होंने थोड़ा सा आगे किया, उनको हिलने नहीं दिया। एज वी से इन आवर लैंग्वेज, लुक एट दिस गाय, या कॉनवे को रन आउट किया। हम कहते हैं छिलावा। आज थोड़ी सी इंडियन लकी भी थे, 3 कैचेस छूटे, केएल राहुल से कैच छूटा, जडेजा से कैच छूटा, और फिर बुमराह से भी कैच छूटा, लेकिन तीनों बैट्समैन अपनी कन्वर्ट नहीं कर सके बड़ी इनिंग में। जी हाँ, तो आई थिंक थोड़ा सा लकी भी थे, आई थिंक, और लक भी उनको फेवर करती है। जो आप एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, जो हम बात कर रहे थे, ये ड्रॉप कैचेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये पहला कैच जो देख रहे हैं आप पॉइंट पे, जडेजा जैसे फील्डर के लिए बहुत अमेजिंग फील्डर, बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। और फिर ये कीपर ये पहले खड़े हो गए थे बॉल के पिच होने से पहले ही, आप देखें इस वजह से बॉल नीचे से निकल गया। ऐसे मौके पे आपको नीचे रहना चाहिए थोड़ा सा, बिल्कुल आपको बेसिकली तो बाउंस के साथ उठना चाहिए ताकि आपको उसका पता। और ये भी एक बड़ी डॉली कैच था बुमराह के लिए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी लकी रही इंडिया की टीम, इतने कम रन में आउट। मोइन भाई ये पार्ट ऑफ गेम है, कैचेस ड्रॉप होना, बिल्कुल, बट दे आर इन बिजनेस। उनको पता है कि भाई कैचेस ड्रॉप हो गए, वी हैव टू मूव ऑन। दिस गेम इज नॉट अबाउट द टाइम यू ड्रॉप अ कैच, चलो जी मैच ही निकल गया हाथ से। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी वीक्स वी हैव बीन हियर नाउ, आई डोंट इवन रिमेंबर। आई हैव नो आईडिया। पाकिस्तान के मैच में स्पेशली जब वार्नर का कैच छूटा, तो उसके बाद जैसे बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी गिरी है, वो इंडिया ने बिल्कुल शो नहीं कराया। हालांकि उनका बेस्ट फील्डर था, सीधा कैच उससे गया है, लेकिन उसके बावजूद बॉलर्स ने कहा है कि नहीं, ये नहीं कि अब ये कैच छूट गया तो ये बहाना है कि मैच चला जाए। उन्होंने और ज़्यादा डिसिप्लिन और ज़्यादा जोर लगाया, जो वसीम भाई बात कर रहे हैं। गैस से हटाया नहीं है, वो कैच गिरे हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं गिरी, कॉन्फिडेंस आया हुआ है ना एज ए टीम। अगर एक बैटर खेल रहा है, उसको चांस मिल गया, उसका कैच ड्रॉप हो गया, तो अब वो अगली बॉल से क्या बोले, नहीं मेरा कैच ड्रॉप हो गया, मैं आपसे ही नहीं खेलूंगा। मतलब फील्डिंग के लिए भी आपकी सेम इंटेंसिटी, सेम बॉडी लैंग्वेज चाहिए आपकी। रोहित वाज ड्रॉप्ड इन द स्लिप्स टुडे एंड देन बाय द कीपर एज वेल, एंड ही डिड हिज डैमेज ऑलरेडी, बट वो भी, but again New Zealanders didn't give up. I mean they had some misfields here and there, but they looked, I said the other day as well, I'll probably repeat again, अगर कोई नया सुन रहा है, youngster या whoever it may be, कि when the chips are down, when जब कैच ड्रॉप होता है या कोई मिसफील्ड होती है, that's where you need your fielders to buck up. right, आपकी टीम को, अपने बॉलर्स को थोड़ा शोर, जो अंदर के 4 हैं सर्कल वाले, जब मुझे विकेटें मिल रही हैं तब मुझे नहीं ज़रूरत बैकअप की, बिकॉज आई एम इन रिदम, द क्राउड इज़ बिहाइंड मी, आई एम रनिंग इन। सो मोस्टली बॉलर्स को तभी ज़रूरत होती है या फील्डर्स को, जब कैच ड्रॉप हो एंड जब टीम नीचे लगी हो। दैट्स वेयर आई वांट पाकिस्तान टीम टू काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम द अदर टीम्स हाउ टू कम बैक। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मुझे, हम डिस्कस कर रहे थे मलिक और मैं, कि
40th ओवर तक 2 विकेट, सिर्फ 2 बंदे आउट हुए थे न्यूजीलैंड के, और रविंद्र सेट थे। और जैसे उन्होंने अटैक किया कुलदीप पे, उस टाइम पे अगर जडेजा पे अटैक कर देते, वो उन्होंने किसी ओवर में चांस नहीं लिया है रविंद्रा ने। अगर एक छक्का मारा भी है तो वो मिचेल ने मारा उसको। आई थिंक दैट वाज अ टाइम कि जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इनसे। अगर कहीं भी 4-5 ओवर्स के बाद जडेजा पे अटैक हो जाता वहाँ पे, तो देन इंडिया को अपने फास्ट बॉलर्स को जल्दी लाना पड़ता, और फिर एंड के ओवर्स में ये ना होता जो हुआ है, क्योंकि डेथ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कराई है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनको, क्योंकि छठा बॉलर नहीं था, 20, 25, 30 रन का फर्क पड़ सकता था। मिसबा, आप तो इस बात की कर रहे हैं चूंकि कुलदीप पे आज अचानक रविंद्रा ने अटैक कर दिया, एंड यू बेसिकली, जो आप हमेशा शोएब कहते रहे, यूज योर फीट, गो आफ्टर हिम, अनसेटल हिम, जो कि अफगानिस्तान के भी गुरबाज ने भी उनके साथ इस तरह हैंडल किया था। बट हियर आई हैव टू आस्क यू दिस, वो जो आप कह रहे हैं कि शायद 25-30 रन या 35 रन का फर्क पड़ जाता, अगर आज ऊपर न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर फेल ना होता, खासतौर पे कॉनवे एंड यंग, तो इवन दैट कुड हैव एडेड दैट 30, 40, 50 रन पार्टनरशिप इन राइट ऑन द टॉप ऑफ द। बिल्कुल, वो तो जाहिर है जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, और जो इनफॉर्म बैट्समैन अगर वो आपको दे देते हैं, तो उसके बाद आपके रन्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बट 2 आउट होने के बाद आप रिकवर कर गए थे, आप एक सिचुएशन में आ गए थे कि फ्रॉम 30th to 40th ओवर कहीं भी आप उनके एक बॉलर को आपने ऑलमोस्ट गेम से आउट कर दिया था। कुलदीप उस टाइम पे उसके ओवर भी पड़े थे, और उसके लिए मुश्किल था कप्तान के लिए। सीमा बॉलिंग करनी शुरू कर दी थी उन्होंने एक टाइम पे आकर। तो वो ऐसा टाइम है, मैचअप है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सेट खड़ा है, 40-50 रन बनाए हुए हैं, 8 विकेटें हाथ में हैं, तो वहाँ पे अगर वो इनिशिएटिव कहीं एक ओवर में कोई 1-2 बाउंड्रीज उस पर अटैक करके ले लेते, तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। ये जो एंड पे मसला हुआ है इनको कि वो डेथ बॉलिंग में उनको बिल्कुल वो कवर कर गए, उस तरीके से रन नहीं हो, वो शायद उतना आसान ना होता इंडिया के लिए। वो बी प्लान था। Another point, Simon O'Doul in commentary, he also mentioned little bit about Daryl Mitchell, जिसने 100 किया है, 130 इसका 100 थोड़ा स्लो हुआ है, that's what he said. We could have gone to 300. 102 का स्ट्राइक रेट था भाई। नहीं, but I think at one stage he was kind of 93 of 90 balls. Yeah. I mean, अगर क्या कहते हैं बाल का खाल निकालना है तो उसकी बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रही, बट यू नो चीज़ है वसीम भाई, उसमें आई गेस कमेंट्री बॉक्स से ऐसे लगता है कि जैसे आप स्टार्ट लेते हैं एज अ बैटर, तो उस सेम मोमेंटम में आप 50 ओवर तक खेलते जाएंगे। नहीं, दोनों साइड के बॉल, स्पेशली जब आप बैटिंग डे लाइट में कर रहे हो, तो वो पुराने होते हैं, वो उस तरह थ्रू द लाइन शॉट्स नहीं लगते हैं, तो गेम चेंज होता है। जैसे आप टेस्ट मैच में, जी, जैसे आप टेस्ट मैच में 100 बनाता है कोई बैटर, तो वो तीनों सेशंस में ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ मारता ही रहता है आपको, उसमें कई सेशन में उसको सर्वाइविंग थोड़ा खेलना पड़ता है। तो आई गेस ये जरूर हुआ होगा। वहाँ पर भी स्लो था शुरू में भी, बल्ले पे बॉल उस तरीके से नहीं आ रहा था जो हम वो पिच रिपोर्ट कुछ सही निकली वैसी ही थी बिल्कुल। With that, we're going to take a break right here on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. You're watching A Sports and Sports in the Airways app. The news coming out of India is that India won their game against New Zealand in Dharamshala and picked up 2 more points. उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, but let me bring this conversation. ब्रेक पे जाने से पहले वसीम, आपने बात की डेरिल मिचेल की 130 जो सेंचुरी थी. What a great century that was. मोइन गो के वो कह रहे हैं कि साइमन डाउल ने कहा कि जी स्लो थी थोड़ी सी, 102 का स्ट्राइक रेट था उनका। नहीं, स्लो नहीं थी, बहुत ही ज़बरदस्त। आई थिंक जो अभी डाटा हमने शेयर किया है सबके साथ, वो जो बीच के ओवर्स थे उसमें तो 6 रन के एवरेज से खेले रविंद्रा और मिचेल। तो असल में तो जो डॉट बॉल्स हुई हैं, तो शुरू में भी हुई हैं कुछ डॉट बॉल्स, और आखिर के 10 ओवर में डॉट बॉल्स। मिचेल की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, कोई डाउट ही नहीं है, हर तरफ शॉट खेला, एक मच नीडेड एज पर रिक्वायरमेंट। आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर था जिस वक्त आए हैं वो बैटिंग करने, और ये बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड की है यहाँ पे, और कोई भी चांस नहीं दिया यहाँ पे, बहुत ही समझदारी से बैटिंग की है। और थ्रू आउट द इनिंग ही वॉज वेरी कंसर्न कि एक लंबा टोटल है, बट उनका किसी ने एंड में साथ नहीं दिया,
आखिर के 40 ओवर में वो मौजूद सबसे रहे। इम्पोर्टेंट था जो उनके मेन बॉलर जो थ्रेट था कुलदीप यादव, जिस तरीके से पहले 3-4 ओवर्स में उन पे उन्होंने हमला किया है, दैट वाज समथिंग। आई मीन ही वाजंट सेट एट बात कर रहे थे शोएब पिछले Using his 2 feet. हफ्ते से लगा है, यही कह रहा है कि इसको खेलने का तरीका ही यही, हैव टू यूज योर फीट, निकल के उसकी बॉल की पिच तक पहुंचो। वो एग्जैक्टली न्यूजीलैंड टीम ने और किया। बैकअप प्लान भी था मिचेल के पास, जब उन्होंने उसको काउंटर किया उनकी जो जिस पे वो विकेट्स ले रहे थे, उसको डाउन द ग्राउंड खेला, फिर उन्होंने सीम अप बॉलिंग शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स खेलने उनको शुरू कर दिए। सिर्फ आपने ये नहीं करना कि स्पिनर को आप जो है सामने डाउन द ग्राउंड वो अब आप उसने आपसे शॉट्स खा लिए, अब आपको वो फिर वहीं बॉलिंग करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा स्पिनर थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग शुरू कर देता है, फिर आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट्स खेलना For शुरू कर instance, देना। let me create a scenario for you. You're batting. Say Kuldeep is kind of bowling, similar bowler, और आपने उसको तीसरी गेंद पे छक्का मार दिया है, आप निकले हो, तो अगली 2 गेंदों में आपके ज़हन में क्या होगा एज अ बैटर? क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए उसमें ये होगा कि अगर मैं ऑफ साइड, अब कोई भी स्पिनर जो है ना, बहुत कम स्पिनर हैं, एक तो आपको कंडीशन और सिचुएशन को असेस करना है एज अ बैटर कि उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है। अगर तो आपको 6 एंड ओवर चाहिए तो ऑफ कोर्स आप सिंगल पे चले जाओगे, लेकिन अगर आपको 8 एंड ओवर चाहिए, अगेन लुक फॉर अ बाउंड्री, क्योंकि अब आइदर या वो आपको यॉर्कर करने की कोशिश करेगा या वो आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा। नहीं, स्पिनर की बात कर रहे हैं। स्पिनर करते हैं यॉर्कर भी, क्योंकि जब उनके पास चॉइस ना बचे, स्पिन नहीं हो रहा बॉल, तो वो करते हैं ये वाला एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते या हैं। फिर तीसरी चीज ये होती है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ जिस तरह वो थोड़ा सा वाइडर चला गया, इसकी चलेगा रेंज में जहाँ पे बॉल नहीं पीछे उसके पास फील्डर है, क्योंकि 5 फील्डर्स अंदर रहते हैं 30 यार्ड सर्कल में, तो वो आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपने क्या प्लान किया या बॉलर अब क्या करेगा, आपने उसको सामने शॉट मार ली। अब फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़ी सी देखनी पड़ती है, फिर आप अगले जो 2 बॉल्स हैं वो खेलें। लेकिन अगर आपको ये लगता है, कुछ स्पिनर ये भी करते हैं, क्योंकि कैप्टन कहता है कि भाई विकेट चाहिए, तो फिर अगर उसने खाया ना आपसे सामने छिक्का, वो आपको फिर देगा सेम जगह पे एक और बॉल, बल्कि हो सकता है ज़्यादा लूपी दे दे। तो अब आपने उसको मैनेज करना है, अगर आप भी विलिंग हो, अगर आपको इफ़ यू कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि जहाँ पे क्रिकेट चली गई है, गो फॉर इट। और वो आज हमने देखा भी। Where you see confident hitting, but हमने अभी बात की इनकी कि मिचेल ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको खोला. Let's not forget Rachin Ravindra. He also contributed really well. And how responsible is he, this young man? I mean, he's like looks so composed. He's definitely and उनको समझ में आ गई कि मुश्किल विकेट है या ज़रा थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है. And how well did he bat? Find of the tournament. Definitely. ये I think 9 पे 8 पे पहली जब विकेट गिरी है, so he was in. Yeah. And शुरू में जैसे कि बताया हमने कि पहले 10 ओवरों में सिर्फ 34 रन किए, जो इनका लोएस्ट है पावर प्ले में, आई थिंक वर्ल्ड कप में सो फार, एनी वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का। एंड देन दे बिल्डेड अ पार्टनरशिप, दे रिकवर्ड रियली वेल। इट वाज सच अ गेम, पहले इंडिया कंट्रोल में था, फिर ये पार्टनरशिप लगी, फिर न्यूजीलैंड कंट्रोल में आ गया। एंड देन दिस बॉय इज़ डेफिनेटली फॉर मी फाइन ऑफ द World Cup 2023 for New Zealand. What a player and what a bright future he's got. Yeah, look at that. Look at how he went about his business. ये आप देख सकते हैं सारे इंटरसेप्शन पॉइंट्स जहाँ पे उन्होंने बॉल को रिसीव किया अपने बैट के ऊपर, एंड लुक एट द बाउंड्रीज दैट ही पिक्ड अप. Well done, well played. You know, young man has got a lot of cricket ahead of him, and already showing signs of great maturity. And with that, it's time for the Master Blaster, brought to you by Bonanza. जी जनाब वसीम, एक सरप्राइज है आपके लिए. की हो गया है? सरप्राइज ये है कि मैंने आपके लिए रबड़ी मंगवाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, हम सब के लिए. अपने लिए मंगाओ रबड़ी. मैंने तो रस्ते में आते हुए खा ली थी जब मैं गायब हुआ था ना बीच में सेट पे आते हुए. तो मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट की, आधा किलो खाई, मैंने बिल्कुल उसको पास कर दिया, बिल्कुल सही है. इसलिए मैं आप लोगों को रबड़ी खिलाता हूँ. हम लेते हैं एक ब्रेक. वेलकम बैक टू द रबड़ी पवेलियन, जहाँ पे हमने रबड़ी का वक्फा लिया था थोड़ी देर पहले. Did you like it? Did you enjoy it? Wasim, come on, you got to tell the truth. I had 2 bites. You did not. There were not 2 bites. There were more than 2 bites. You had 2 very big spoons. 2 bites. Okay. So आप कहते हैं मोइन कैसी लगी? बहुत मजे की. जबरदस्त. Thank you. रबड़ी is a very good dessert. मिसबा ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बाद. मिसबा, yes, मिसबा की पहली दफा पूरे कराची में मुक जानी है. मिसबा ने ऑर्डर करनी शुरू कर देनी है. All right, folks, let's get back to the business of the World Cup, the ICC Men's World Cup. News out of Dharamshala, India winning this one, and with that, it's time for Super Sixes. Shoaib Malik, Yes sir, बताएं. क्या कर रहे हैं आप? मैं मैसेज आया उसका जवाब दे रहा हूँ. किसका मैसेज है? दोस्त का.
क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कल मैं सुबह नाश्ता भेज रहा हूँ 33 किलो फखर भाई के लिए। मोइन भाई जी ना, क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं, मैं हिसाब लगा रहा था जरा किस चीज़ का हिसाब लगाते हैं? जो मैच में आज हुआ। वसीम भाई की ज़मीन पर स्क्वायर फुट अभी का हिसाब अभी है? भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, जो आपने अभी तक की नहीं। मसलन क्या चीज़ नहीं? डॉट बॉल आपने डिस्कस नहीं किया। 150 डॉट बॉल खेली है न्यूजीलैंड ने। क्या बात है, आपने ये सारा हिसाब किताब लगा रहे हैं बैठ के। सेफ हैंड्स बाय लीज, राइट द वे फॉरवर्ड। मोइन, आप बहुत सारी बातें करना चाह रहे थे, तो बताएं फिर न्यूजीलैंड की डॉट बॉल्स का आप जिक्र कर रहे थे। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर देम और क्या मसला वे है? फॉरवर्ड सिंपल सा यही है कि डॉट बॉल्स कम खेलें। दोनों टीमें टॉप पे इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो इतनी वरी करने की बात नहीं है। मेरा ख्याल दे डूइंग देयर जॉब, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेसिफिकली ये थोड़ा सा कंसर्न था। डॉट बॉल्स इस मैच में ज़्यादा खेली है न्यूजीलैंड ने, वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 135 to 140 तक मैक्सिमम होनी You चाहिए। mean कोई ड्रास्टिक स्टेप लेने की जरूरत नहीं है अभी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज के दोनों टीमें टॉप टेबल के हैं। एक विन और चाहिए, मेरा ख्याल है। जो पॉइंट टेबल नज़र आ रहा है, न्यूजीलैंड भी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल। सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसके अगेंस्ट आज मैच था, वो बहुत ही तगड़ी टीम है, और वो अपने होम में खेल रही थी। नथिंग मच टू चेंज, कीप द सेम कॉम्बिनेशन एंड हैव दैट फेथ इन योरसेल्फ, दैट्स इट। Right on, and that was the way forward. And with that, it's time for a break on the Pavilion. But जब हम वापस आएंगे तो hashtag Ask the Pavilion, आप लोगों के सवालात और कमेंट्स हम शेयर करेंगे यहाँ पे अपने पैनलिस्ट के साथ. Don't go away, keep watching. All right, welcome back to the Pavilion. It's time for hashtag Ask the Pavilion, and with me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. And let's start off. The first question, Jawad Hi Hunyavar. ये आपका एक्स हैंडल है. So Jawad Hi Hunyavar, आपका सवाल है कि hi everyone. Today Imam said in a press conference that it is our way of playing, not with high strike rate, in power play. Do panelists think that this approach is right, this intent is right, or we have to change this and adapt according to modern cricket, the way South Africa has batted? Panelist? Should I start? You want to start? क्वेश्चन वॉज के इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये इस आज स्टाइल के हमारा स्ट्राइक रेट पहले 10 ओवरों में इतना अच्छा नहीं होता, बट सो फार इस वर्ल्ड कप में हमने देखा है कोई एक आधी मैच के अलावा कोई पावर प्ले इतना खास हुआ नहीं. 65, 60 आइडियल बहुत अच्छा हुआ तो 80 हो गया होगा किसी मैच में. इंडिया ने किया था, इंडिया ने किया था. सो मोर लेस आई थिंक इन वनडे में द आइडिया इज टू हैव विकेट्स इन हैंड, बट अगर आप स्लो खेलो, जैसे न्यूजीलैंड ने स्लो खेला, 40 प्लस किए इन 10 ओवर्स, 2 विकेटें भी गिर गई, फिर उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया. जब पार्टनरशिप लगी तो 6 रन ओवर गए वो. सो वट आई थिंक इनका जो क्वेश्चन है उसका मतलब सबके पीछे, उसके पीछे सबका एक क्वेश्चन है कि जब आप ज़रूर स्लो स्टार्ट करें, स्ट्राइक रेट ना रखें 10 में, बट फिर उसको कवर अप भी करना है आपने बाद में जाकर, उसका एडवांटेज भी लेना है. एडवांटेज लेना है. That's very true. You want to add anything? जो मेन चीज़ है एंड रिजल्ट. अगर एंड रिजल्ट आपकी फेवर में आ रहा है देन इट्स ओके, योर अप्रोच इज गुड. अगर नहीं आ रही देन यू हैव टू चेंज. एंड रिजल्ट जो है मोइन भाई, वो ये है कि एंड रिजल्ट ना थोड़ा सा उसको एलेबरेट करना पड़ेगा. वो ये है कि अगर आपके ओपनर्स ने पहले 10 ओवर्स में 40 रन बनाए हैं, 50 बनाए हैं, लेकिन जो ओपनर्स हैं वो सेट हो गए हैं, तो उनमें से एक जो है उसको एटलीस्ट बड़ा 100 करना चाहिए या एटलीस्ट 100 करना चाहिए, ताकि आप एक ऐसे टारगेट पे पहुंच जाएं, और अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो आप चेज कर सकें उस टारगेट को. ये है एंड रिजल्ट. All right. Riha Nawar Nudra. Riha Nawar Nudra. Nawar Riha 98 आपका ex handle है. And Riha Nawar Nudra is saying, hello, a big fan of the show from Bangladesh here. I write almost every day hoping Falam B3, which is me, would take my question. Okay, we do apologize. There you go. Anyway, I wholeheartedly support Team Pakistan and wanted to ask what should be their ideal batting lineup for tomorrow. What should be their ideal batting lineup for tomorrow? Reha Nawar Nudra, I take this to you. First of all, I think the first question should be what should be the playing 11 tomorrow in your opinion, and then the batting order. Okay, I think let's just address if there should be any change. Let's just go. Reha, sorry, we're taking the liberty of changing that question, but we are addressing to your thing. Ji, Misbah. देखिए, मेरा ओपिनियन तो ये है कि आपकी बैटिंग इतना बुरा नहीं कर रही. ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने जो मैच, पहले मैच में भी हमने 290 किया, दूसरे में 347 हमने चेज़ किया. अभी इंडिया के मैच में हमने, ठीक है हमारी बैटिंग ने अच्छा नहीं किया, बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी
chasing 360 plus, still we managed to score 305 runs. So इतनी बुरी अभी हमने, मुझे लगता है कि चिप इन कर रहे हैं आपके बैट्समैन, और फिर अगर हम चेंज करेंगे, नया कोई भी आएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा. तो जो खेल रहे हैं उन्हीं को थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है अपनी बैटिंग में, अपने जो इनिंग्स है उसको थोड़ा बड़ा लेके जाना है. बट आई थिंक मेजर चीज़ जो है हमें बॉलिंग में एफर्ट की ज़रूरत है. ऑलराइट, बॉलिंग की आपने बात की. सो इंटरेस्टिंगली हुसैन मुगल, आपका ट्विटर एक्स हैंडल है @#_Mughal. So Hussain Mughal, salam everyone. My question is for Sir Wasim Akram. Sir, how do you see Mr. Ravi Shastri's statement regarding Shaheen Afridi? Biggest fan of legends Wasim Akram Sahab and Misbah Haq Sahab. So this is for you, Wasim. He's asking what you think about Ravi Shastri's comments about Shaheen. Yeah, I read about it. Ravi is a good friend of mine. That's his opinion. Obviously, शाहीन को अगर आपने किसी भी दुनिया के टॉप बॉलर से मिलवाना है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ. थोड़ा आउट ऑफ टच है, मे बी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, बट इज़ ओके, विल कम बैक. ही इज़ ओनली यंग एंड ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट जब खेलेगा तो उसका रिदम भी वापस आ जाएगा, विकेटें भी लेना शुरू कर देगा. ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, ही इज़ ऑन द वे. ऑलराइट. सलार सिकंदर मिसबा मैसेज भेज रहे हैं, रबड़ी वाला वीडियो उन्होंने देखा है अभी, और वो कह रहे हैं मिसबा वाज मिसिंग समथिंग रियली डिलीशियस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. योर थॉट्स? या पहली दफा खाइए, बताया ना यार. सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं. बहुत मज़े की थी. और लेकिन मसला ये है कि जितना मैं वैसे नॉर्मली खाता हूँ, तो अगर मैं ये खाना शुरू हो गया तो फिर वेट कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल. खैर है, दोनों भाई जिम में जाके कर लेंगे कुछ. नहीं जिम में नहीं होगा. जिम नाल कुछ नहीं होना. नहीं, जिम में रबड़ी ले जाइएगा. बेटर, ग्रेट आइडिया. ये देखो शोएब, इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है, तो हमेशा सेंसिबल बातें करता है. जिम में रोटियां बराबर करोगे रबड़ी. नादिया इफ्तिखार, Nadia_Iftikhar1, आपका okay, here's Nadia Iftikhar. Your ex handle is Nadia_Iftikhar1. Met Mohammad Hasnan last night. He said he is injured and he is paying for his treatment in London as PCB isn't even bothered to pay for it. They were our backup players. Till when we have to raise our voice for these small things? When will we have sincere people? I don't know. I think I'm going to take this to Misbah straight away. Yeah, no. अब पहले तो हमने ये देखने कि इस बात में सच्चाई है कि नहीं है. Authentic है कि नहीं ये बात. I think that's the most important thing. चलिए, अगर सच्चाई है तो क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल. मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि आपके जो ये बैकअप बॉलर क्या, ये आपके मेन बॉलर्स में था. हसनैन वनडे क्रिकेट खेला है, उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं. जिस तरह उसका नया बॉल अच्छा स्विंग होता है, तो आइडियल कम्बिनेशन है शाहीन के साथ हसनैन का. अगर वो फिट हो और वो खेल रहा हो, एक तरफ से बॉल अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ से 140 पे, और बहुत अच्छा उसका नया बॉल आउट स्विंग होता है. सो लीथल कॉम्बिनेशन. इसने लंकन प्रीमियर लीग में हमारे साथ ही था, ये बीलव कैंडी टीम में जो जीती है. इसने सेमीफाइनल में एक स्पेल किया है. उसने दो उनके मेन बैट्समैन जो भी थे, एक अफगानिस्तान से था, एक वहाँ से, उनको लेग स्टंप पे चले गए वो दोनों. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. That's how fast he is. He's bowled really quick. मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ. मैंने को आपके थाई पे बॉल खाते हुए देखा. You took it once on your inner thigh basically, and you weren't wearing an inner thigh. He's got pace. Yeah, he's got pace. There is no doubt about it. मेरा क्वेश्चन इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ. वो ये है कि आप लोगों को लगता है कि प्लेयर्स एसोसिएशन होनी चाहिए पाकिस्तान में? वो इसलिए कि अभी जब वर्ल्ड कप में टीम जा रही थी तो वो था कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा, वो शायद लास्ट मिनट पे साइन हुआ है. ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे हसनैन की चीज़ है, या जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जब इंजर्ड होते हैं, व्हाई वी हैव टू सेंड देम अब्रॉड. ठीक है, सर्जरी के लिए, बट रिहैब के लिए क्यों? तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है, सोल्यूशन मिल सकता है अगर प्लेयर्स एसोसिएशन. You know, yeah, good. Let's have this discussion tomorrow because कल पाकिस्तान का मैच है, तो you know we can maybe in the post bring these points up right now. Dixit Pahwa, that's your ex handle. I'm from India. What should be the ideal combination of India once Hardik Pandya comes in? Should Shami play, or India should think who can bat and bowl few overs at number 8? Shami or Shardul? शामी को खिलाना चाहिए. वो इसलिए कि इनके जो बैटर्स हैं, देखें दुनिया में जितनी टीम्स हैं उनके जो फिनिशर्स हैं वो है 5, 6, 7. बट इंडिया की बात करें तो इनके फिनिशर्स जो हैं वो शुरू में ही हैं, और नीचे जब हार्दिक पांड्या आएंगे तो
इनकी स्ट्रॉन्ग जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बट एक जो वीक लिंक नज़र आता है वो ये है कि जिस दिन इनके जो ए प्लान है, जो पावर प्ले में विकेट्स लेके देते हैं, बुमराह हैं या सिराज हैं, वो नहीं करेंगे और कुलदीप या जडेजा में से एक को रन्स पड़ेंगे, तो फिर आपका वो जो पांचवा छठा है, शर्दुल होते हैं और हार्दिक पांड्या होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, तो फिर बी सी डी कोई प्लान जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यू हैव टू हैव 5 प्रॉपर बॉलर्स, और जिस तरह आज 5 आउट किए हैं शमी ने, तो I'm sure he'll be in the squad for rest of the games for India. All right, जी Wasim. I have a question from Saifullah Masood. वो कह रहे हैं salam to all. Please tell us what will it take for Pakistani team to get its swagger back. हाथ चूक लो। Swagger means mojo जो आप कहते हैं, get the mojo back. mojo, swagger, Form. I suppose form वो जीतने से ही आएगी. I suppose if they win Saifullah, their confidence will get आ जाएगा, body language बदल जाएगी. But again sometimes killer instinct natural भी होती है. I hope कि इन लड़कों में हो, सिर्फ 1-2 मैचों में कौन थोड़ा सा अच्छा करें तो वो सारी चीज़ें वापस आ जाएं. Just give your best. Just give your best. Don't think about कि मेरे left क्या हो रहा है, right क्या हो रहा है. Just focus on your own game. That's it. Because World Cups में आजकल के social media में there'll be lot of fake news coming out from the thing. You don't have to listen to these, Pakistani team. Just go, stick together, nice hotels in India, have good food, healthy food before the game, I suppose, and then just get on with it. All right, and with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, there's more hashtag Ask the Pavilion. Don't go away, keep watching. Right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app, and hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला जारी है. Meanwhile, नादिया इफ्तिखार जिन्होंने मोहम्मद हसनैन के हवाले से सवाल किया था, उनकी तस्वीरें अपने साथ जो है वो हमारे साथ अभी शेयर की हैं ट्विटर के ऊपर. उन्होंने कहा कि इल्फर्ड में उनसे मुलाकात हुई थी. सो जो वो कह रही हैं वो दुरुस्त है, मगर इसके ऊपर हम मजीद इन्वेस्टिगेट करेंगे कि why, if this is how it is, there has to be reasons and explanation. It's not a rocket science. कोई आपको अक्लमंद बनना नहीं चाहिए. अगर आपका पैनल फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, या बेस्ट आपके डॉक्टर्स / फिजियोज नहीं आ रहे, आप इंग्लैंड में जो भी आपकी हेल्प करता है, वहाँ पे एक फिजियो भी क्लिनिक है, डॉक्टर जैफ है मेरे ख्याल में, उससे कॉन्ट्रैक्ट करो, उसे कहोगे कि हम यहाँ से रिहैब के लिए लड़के यहाँ नहीं हुई तो आपके पास भेज दिया. आप क्रिकेट बोर्ड की बात करें ना, क्रिकेट बोर्ड में जो भी आता है यार. लेकिन वो पैनल पहले डायग्नोज तो कर ले, वो डायग्नोज भी बहुत लेट होता है लड़कों का, थोड़ी प्रॉब्लम है. So I'll just come back to that, address that, because I noticed something, and please enlighten me if I'm wrong on that. But before that, we एक और सवाल ले लेते हैं. सवाल नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. सुहेब का I'm सुहेब इरफान, आपका एक्स हैंडल है @I'm सुहेब इरफान. आप कह रहे हैं Faram B3 as a Pavilion, just on side news, Saim Ayub scored 200 runs on day 1 of Quaid-e-Azam Trophy of 244 balls. Don't you think he could have been a good replacement for Fakhar for this World Cup? थोड़े रन उसके. थोड़े रन उसके ना, 600 बनाता है एक इनिंग में, तो फिर होता है he would कहता है वो 350 बनाता तो फिर उसको ये वही है ना. हाँ, पाइन वो जो टूर नहीं था ये टीम वाला जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, पाइन 500 काटने 700 कर लो. नहीं, बट ही इज अ गुड प्लेयर, वेरी टैलेंटेड, लाइक करंट फॉर्म भी बहुत जबरदस्त है, सीपीएल में भी बहुत अच्छा खेल किया है. वर्ल्ड कप में तो नहीं आ सकता था ना, उससे पहले आ सकता था. उससे पहले अभी रन किए. मैं पहले की सीपीएल की बात करूं, सीपीएल के बाद टीम बनाऊं. He's a good player, no doubt. I think he is a wonderful player. But that's where the captain is very important. आप I suppose in our culture, अब वहाँ रोहित शर्मा को पता होगा इंडिया में कि कौन से प्लेयर उसके लिए बैकअप के, ये स्क्वाड की बात नहीं कर रहा, ट्रैवलिंग रिजर्व्स की बात नहीं कर रहा, कि उनकी जो शाहीन / उनकी जो बी टीम है या ए टीम है, उसमें कौन से लड़के हैं. मुझे उन लड़कों के नाम पता है, बिकॉज उनका इतना प्लानिंग है कि वो मेन लड़के हर जगह खेल रहे होते हैं. यहाँ पे ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता. Well, Saim Ayub is we have identified. He's a great talent. We have to look after him. I have seen some of his innings in CPL. आजम के साथ वो वहाँ पर खेल रहे थे, एक ही टीम में खेल रहे थे, and just fantastic. Not only that, I saw a video of his on the internet in a net session, and he was batting. I've not seen anybody bat like that in a net session. He was hitting clean and he was hitting big. फाइनल में भी उसने 50 किया, विनिंग शॉट भी मारी है उसी ने. Right. So just spectacular, and yeah, I mean he scored that double century. But so if Fakhar is injured again now, Wasim, was he injured before he went? Look, I said other day, I don't want to create controversy,
बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। LPL में उसका घुटने का प्रॉब्लम था, वो हमारा जो क्वालिफायर जैसे हम एलिमिनेटर कहते हैं उससे पहले वो चला गया था हम्बन टोटा। बिकॉज एक तो मुझे ये समझ नहीं आते हैं, आपने एक प्लेयर को NOC दे दी कि ये NOC है तेरा, आई एम ऑल फॉर इट कि कंट्री कम्स फर्स्ट। जब कंट्री का मैच है तो आपने जाना ही जाना है, फेयर कॉल। Agreed, absolutely. जब हमारा एलिमिनेटर था उस दिन कोई मैच नहीं था, उससे अगले दिन भी मैच नहीं था, उससे अगले दिन भी मैच नहीं था अफगानिस्तान का इन हम्बन टोटा। बट इनको मेल आ गई कि जी आप आ जाएं, कि वो ये नहीं रियलाइज़ किया कि ये जो टीम कोई एलिमिनेटर में है, ये पिछले 3 हफ्ते से लगे हुए हैं पूरी टीम, इन्होंने इनका इम्पॉर्टेंट मैच है, एक दिन रुक जाए अगले दिन आ जाए, मैच तो है नहीं, बट दे डोंट केयर। यू सी यू इट्स गिव एंड टेक इन लाइफ। अगर आप लंकन प्रीमियर लीग या लंकन बोर्ड का ख्याल करोगे, वो आपका ख्याल करेंगे। तो ये चीज़ें भी तो सोचनी होती है ना। फिर NOC ना दो, फिर NOC में लिखो कि इज़ अवेलेबल टिल दैट पर्टिकुलर डे और गेम, उसके बाद ही हैज़ टू रिपोर्ट बैक। क्लैरिटी। ये तो वसीम भाई कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है ना। मैं कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हूँ। मेरे केस में भी ऐसा होता है। मैं तो डोमेस्टिक कभी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं हूँ। जब इनका दिल करता है कहते हैं वापस आ जाओ, जब इनका दिल करता है NOC दे दो। वापस क्यों आ जाओ? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। इसीलिए प्लेयर्स एसोसिएशन ये बहुत मसला है। भी प्लेयर एसोसिएशन का बड़ा दफा ये जिक्र हुआ है, बट फॉर दैट प्लेयर्स हैव टू ट्रस्ट on the players who will be ex-players who will be वसीम भाई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अभी से। अगर नहीं लिया जाएगा, there is a massive gap between the players and Pakistan cricket board. I think we are probably one of the few countries we don't have a player association. Yeah. इंग्लैंड की जो प्लेयर एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया की, वो एक्स प्लेयर्स का, एक्स अंपायर्स का, एक्स ग्राउंडमैन्स का, सबका ख्याल रखती है। दे रेज फंड्स ऑल ईयर राउंड एंड दे हैव ड्यूरिंग द सीजन दे हैव चैरिटी गेम्स वेयर दे पे द एक्स प्लेयर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो भी थोड़ी बहुत होती है, ताकि उनका खर्चा निकल जाए। देन दे आल्सो क्रिएट जॉब्स फॉर देम एज वेल। वसीम भाई अगर नहीं कर रहे, हमारा कल्चर ऐसा है, चलो अंडरस्टैंडेबल है जी, नहीं हो रहा ऐसा, नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट पॉइंट अ कॉन्टैक्ट कि जिसको प्लेयर कोई भी हो, वो चाहे डोमेस्टिक का छोटे से छोटा प्लेयर भी हो, बेसिक मैनेजमेंट थिंग। एग्जैक्टली, बट देयर इज अ मैसिव गैप। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा था, आई वांटेड टू डिस्कस एंड यू नो आई वांटेड यू टू शेयर दिस विद मी। आई वाज लुकिंग एट द इंडियन ड्रेसिंग, वो जो नज़र आता है आपको मैच में, डग आउट और सब कुछ वो, एंड देन मैंने जितनी दफ़ा भी उनको देखा है, जब वो मैच खत्म होने के लिए सब हैंड शेक करने के लिए आते हैं, तो वो जो ऑरेंज यूनिफॉर्म है, जो उनका सारा सपोर्ट स्टाफ है, मैंने उसमें कोई भी फॉरेनर नहीं देखा, कोई गोरा नहीं देखा। They're all Indians. Yes. Why do they not have? They can afford all the Gora coaches in the world. They planned this in front of me in 2010 onwards. Okay. They hired the best of the best for IPL teams. Right. The physios, the trainers. Foreign coaches. Foreign. Right. Physios भी. अच्छा. फिर अपने लड़के उन्होंने जो रखे हैं सारी, हमारी टीम में कमलेश था न फिजियो, दूसरा जूनियर फिजियो, उसको उन्होंने ट्रेन कराया NCA में अपने में, वहाँ भी बाहर के फिजियो NCO देख रहे थे, उनको सबको ट्रेन किया, एंड देन नाउ दे वर्किंग विद इंडियन टीम एंड मोस्ट ऑफ देम आर आल्सो वर्किंग इन IPL एज वेल, सो वेल डन। So they basically, you mean to say, is they did transfer of knowledge into their own local people. कि यार बाहर से कोच लेकर आओ, हमारे कोच के साथ उसको हमारा, हम तो भी वहीं फंसे। हमारा फिजियो है, फॉर इंस्टेंस कराची किंग का फिजियो है, वो जाएगा पाकिस्तान A टीम के साथ, जीत के आएंगे, कोच जीत के आएगा, अगले टूर पे वो दोनों नहीं है। उन्हें फर्स्ट क्लास मैच नहीं मिल, उन्हें फर्स्ट क्लास की कोचिंग नहीं मिलती, या वो फिजियो नहीं मिलती, उनको B टीम में ग्रेड 2 में भेज देते हैं। सो हु मेक दीज डिसीजंस? वाई? यू सी, हम अभी तक पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स बदला, उससे नहीं निकले। अच्छा, लेकिन वो तो खैर एक इशू है ही है ना, इनहेरेंट हमारा, कि हम उसमें से नहीं निकले। बट इट रियली, आई थिंक वी जितने भी लोग देख रहे हैं, और शायद पाकिस्तान के कोई बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स भी देख रहे हैं उस चीज़ को, तो गुजारिश है कि ये ज़रा सोचें। 2010 में एक डिसीजन लिया गया था, एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, और 2023 में उसका नतीजा ये है कि आज इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर और उस टीम की पेविलियन के अंदर कोई भी फॉरेन कोचेस नहीं है, and they have created a world class team that looks like a champion team completely on their own people. एग्जांपल्स चीज़ें तब बनती हैं जब आप में पेशेंस हो, जब आप वेट करें, लॉन्ग टर्म जब प्लानिंग आप करते हैं, तो फिर ये नहीं होता कि फिर लॉन्ग टर्म आप 8 साल की प्लानिंग, 10 साल की प्लानिंग करके फिर आप 1 महीने के बाद वो 8 साल वाला रिजल्ट मांग रहे हो। तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत जल्दी फिर चेंजेस होती हैं।
आपका रिजल्ट पहली सीरीज में नहीं आता या कुछ भी आप करते हैं तो फिर फौरन चेंजेस स्टार्ट। I agree with you, Misbah. I completely लोग agree से with you. लगाने की But I am ज़रूरत just है, saying is that जिनका there is vision हो। visibly again हम टीम की बात नहीं कर रहे इस वक्त, सो प्लीज़ कोई भी इसको टीम के साथ ना कंफ्यूज करे। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं और ये हम 3 साल से लगातार कर रहे हैं, हर वर्ल्ड कप के अंदर करते हैं। वसीम, ऐसे ही है ना, हर वर्ल्ड कप में यही होता है, या, डिस्कशन तीसरा होती है। साल एक एग्जांपल है, जब हम बात करते हैं कोई भी हमारा एक फॉर्मेट आता है डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो वो जितनी रेगुलर बेसिस पे हम चेंज करते हैं उसको हम कभी भी मैच्योर नहीं होने देते। 1-2 साल चलता है फिर चेंज आ जाती है, फिर 1-2 साल चलता है फिर नए सिरे से वो सारी चीज़ें। तो यही वजह है कि जब आप कंसिस्टेंटली वही सिस्टम होगा और उसमें आप ग्रेजुअली बेहतरी लेके आएंगे तो वो आपको रिजल्ट्स देना स्टार्ट हो जाए। हम वो पूरा ही सिरे We से have been फिर saying the same words from last 3 World Cups. ये पेविलियन जब से हम कर रहे हैं, हाँ, हर जब से पेविलियन कर रहे में हैं। ये गुफ्तगू होती है Yeah. हमारी बड़े। खैर एनीवे आई होप, बट आपने बताया एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सबके दोस्ती के लिए कि इन 3 सालों में हमारे पास सिर्फ एक कुर्सी पे ही चेंज होती रही है। वहाब गए, शोएब आए, Yeah. वकार गए, मोइन आए, बट कंसिस्टेंसी रही है हमारे। Yes. हमारे 1 साल में हमारी लीडरशिप में भी कंसिस्टेंट रही है। हमारी लीडरशिप भी कंसिस्टेंट रही है। जेजे से तो जान छूट ही नहीं सकती किसी की, आप भूल जाए उसकी। I doubt that. वो ऐसे ही है ना, घर बनाना शुरू करें, आप बुनियाद बनाएं, आप छत तक जाएं और फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ आए नहीं ये तो गलत बन गया, नहीं, थोड़ी देर फिर पता लगे पैसे आगे नवा शुरू कर थोड़ी दो। देर बस पता लगे पैसे मुक गए ना। आधी मंजिल फिर पे आगे आधी नया शुरू करते हैं तो वो Alright. सारी दीवारें ही बनती रहेंगी सारी। एक आखिरी ट्वीट मैं पढ़ देता हूँ, ये आया है अमिताभ एस, आपका एक्स हैंडल है @रिको अमित। रिको अमित का पैगाम है, क्या बात है, काश आप सब दिल्ली आ सकते, यहाँ की रबड़ी भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, इंशाल्लाह समडे, डेफिनेटली इंशाल्लाह समडे। भाई ये सुबह शो ना होता, इन्होंने कल पहुंच जाना था आपके पास। All right, Shoaib, thank you very much with that. Thank you. But wait, before I say thank you, let's take a look at what we have in store for you tomorrow. Tomorrow is Pakistan's game. कल का मुकाबला आप लोगों की स्क्रीन पे ले आए। कल हम आपको चेन्नई लेके जा रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान का मुकाबला है अफगानिस्तान से। याद रहे कि अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड की टीम को हराया है, और पाकिस्तान की टीम के साथ टाकरा होगा कल। एक अच्छा मैच होगा, हम देखेंगे आपकी खिदमत में 11:30 बजे सुबह हाजिर हो जाएंगे यहाँ पे पेविलियन में, और फिर 1:30 बजे मैच आपकी खिदमत में लाइव जो है वो पेश करेंगे। सो कल सुबह मुलाकात होगी। विद दैट शोएब, थैंक यू वेरी मच। मोइन, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Fakhar. मिसबाह, थैंक यू वेरी मच। वसीम, थैंक यू, some more rabdi And kachakach. all right, 8-bit Gulkan. 8-bit Gulkan, and good night.